Good morning, everybody. We will wait for 2 to 3 minutes, right, so that everybody can join and mention yes in the chat box if I am audible. Okay. So be ready with your class note and let's have a discussion based session, right? Smith, Adroja. Smith. Smith Adroja. Not audible to you. સંભળાય છે. અચ્છા તમે બીજા આઈડી થી જોઈન થયા એવું થયું. હા સર, કોલેજનો આઈડી છે મારે. કોલેજનો આઈડી છે. Okay. So I think 21st students are there. So let's start our session. So what we are discussing is we are discussing about the, you can say, the highway and transportation system, right? So I'm sharing a screen with you. And can anybody summarize what we have discussed in the previous session? સર આપણે એ જોયું હતું કે બધું આપણે ટ્રાફિક નું ને એના વિશે બધું સોલ્યુશન નું જોઈતું હતું. Okay, solution point of view. Okay. A scope What of else? civil What we are highway discussing? engineers, a scope of transportation and highway engineers. हाँ, अगर आपके पास हाईवे इंजीनियर की डिग्री है, ठीक है, और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है मार्केट में, राइट? सो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि आपके पास कौन सी Yes, sir. जगह है, आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट? So that what we are discussing. We are discussing about unit number 1, which is introduction of highway engineering, and we are discussing about the scope of the highway engineering, and we will see the scope of highway engineer in detail. Okay, and after that we are going to learn about the different classification of highways. So what we are discussing is we have seen the definition of the transportation, right? What we call different four modes of the transportation system, right? Then what we call highway engineering, generally constructed on a small embankment slightly above the ground level, right? In order to avoid general maintenance problems, right? And the science and technology dealing with this kind of road is called the highway engineering, right?
So yes, we are discussing about the scope of the highway engineering, right? Which is a very important thing and that we need to understand. So we are discussing about the different aspect and detail about the scope of the highway engineering. So in that you have written in your class note that few points, right? Likewise, 5 points in your class note: development, planning and location, highway design, geometrics and structures, traffic performance and its control, materials, constructions and maintenance, and economic, finance and administration. So these are the main 5 points which comes under the topic of the scope of highway engineering. So the question is that when we talk about the development should be done in a such a manner that it should upgrade the living standard of the people living in that area, right? So that what we are trying to convey to learn this subject. हमें ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जो लोगों के जीवन धोरण है, ठीक है, जो पॉवर्टी और रिचनेस है उसके बीच का जो गैप है वो कम करे, ठीक है। इस टाइप का हमें डेवलपमेंट चाहिए, इस टाइप का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट। सो आई थिंक मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट ऑल दिस 5 aspects. So let me ask Kevin Parmar. Kevin? Kevin? Yes, sir. Yes. Can you summarize the previous session based on your class note? તમે જે ક્લાસ નોટ બનાવી છે એના આધારે મને સમરાઇઝ કરો પ્રીવિયસ સેશન. Just a second, sir. Yes, show me your class note first of all. Show me your class note. Turn on your video and show us your class note. You required a class note, right? You required a class note to understand this subject. Kevin, show me your class note. Turn on your video first. Am I not audible to you? एक જ મિનિટ sir. We all are waiting for you. So એ સર પણ બધું અલગ અલગ લખેલું છે. હા બતાવો તો ખરા શું અલગ અલગ ક્યાં શું લખ્યું છે, બતાવો તો ખરા. ટર્ન ઓન યોર વિડિયો ફર્સ્ટ. Quickly. Show me your class note. Okay. So what are the topics name that you have written in your class note? What are the topics name? Scope of the highway engineer. Okay. પછી એમાં આપણે 5 પોઈન્ટ જોઈએ હતા. Okay. પછી આપણે એના પહેલા ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ઓલું કઈ રીતે ટ્રાફિક નું ને એનું થાય, ટ્રાફિક નું સોલ્યુશન ને બધું. Okay. पवन कुमार शाह. यस सर. आप अपना वो क्लास नोट बताइए. सर क्लास नोटबुक तो ये तैयार नहीं हुआ सर, क्योंकि घर से आने में थोड़ा
टाइम लग गया सर, इधर में अभी रूम शिफ्ट नहीं हुआ अच्छा ठीक से है ठीक तो है सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. Okay, loss will be yours, right? Don't worry. So let us start with the straightforward our PPT. Let us go back to the PPT. That what we are learning is uh, each and every point you can discuss in detail. When I ask the question that detail explain in detail the scope of highway engineering, so you must have to write this five parameters, five, you can say the 5 points, right? And you need to explain it in a detail in your way, right? But it should be a technical, not a story one. So what should be comes under the development, planning, and location. First and foremost thing, when you are designing, when you are planning a highway, a road network, you require to take care about the historical background. See, right? So historical background means whether this area comes into the flooded zone, right? कि वहां पे जो बाढ़ तो नहीं आती है ना, आती है तो उसका डेटा चाहिए हमें, ठीक है. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यहाँ पे इस एरिया में कितनी बारिश होती है, ठीक है, राइट. देन वहां पे जो है अर्थक्वेक कितनी बार आया था, राइट, कौन से जोन में पड़ता है ये रीजन, राइट. एंड व्हाट इज द डेवलपमेंट और मास्टर प्लान टू डेवलप दैट रीजन, राइट. So that is historical background, right? So you need to take care about the history of the that region before going for the planning of highway, right? So history is a very important thing, and you should learn many things from the history. See, the in the ancient times in Roman, right, in Rome, the road are constructed, and which roads are having a huge life, right? You can say very long lifespan as compared to the others. So right now we have 30 years of a lifespan of any typical highway, but at that time the road lifespan is very huge. You can say century, right? 100 years, 150 years, 200 years. So that should we know about the historical background, right? तो आप जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, आप जहाँ पे हाईवे प्लान करना चाहते हो, वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है. सेकंड थिंग, यू शुड नो अबाउट द बेसिक स्टेप्स फॉर प्लानिंग. प्लानिंग के लिए बेसिक स्टेप्स क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है. जैसे कि हम हर बार जो क्वेश्चन आप ऐसे पूछ सकते हो प्लानिंग के लिए, राइट, व्हाट, WHAT, राइट, हमें क्या बनाना है, वो पहला क्वेश्चन पूछिए, तब आपको प्लानिंग का स्टेप आपको हो जाएगा पता. उसके बाद वो विल प्लान, उसके लिए टीम चाहिए या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे आप प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है. देन यू कैन से वेयर, दैट इज अ प्लेस, आप कहाँ पे हाईवे प्लान करना चाहते हैं, राइट. सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग, एनी प्लानिंग, राइट. देन व्हेन, राइट, आप कब जो है वो हाईवे प्लान करेंगे और कब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, टाइम फ्रेम, राइट. एंड यू कैन से why we are planning this network, and finally is how. So these are the few steps for planning. अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो अभी यही स्टेप्स आएंगे कि आपको कौन सी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है. उसके बाद जो है आप कौन प्रिपेयर करेगा, यानी कि आप खुद कब करेंगे, तो कि हर रोज, ठीक है, क्या टाइम फ्रेम है, तो उसकी शेड्यूल क्या है, कब आएगी एग्जाम, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा जो है सैलरी हमें मिल सके, राइट. और हाउ, so the different methodology for preparing for the exams. So like in your exam we have to plan for the highways also. समझ में आ रही है बात? यस सर। आप यस कोई सर। हाँ, आप कोई प्लानिंग का दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द हाईवे. जैसे मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस लिख दिए, उस हिसाब से आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं फ्रॉम द रियल लाइफ, एनीबॉडी?
पार्थ? યસ સર. हाँ સર એક સોલ્યુશન કહું? हाँ बोलो. સર આપણે જે ટ્રેન ક્રોસ થતી હોય રોડ ઉપરથી, તો આપણે તેને અંડરગ્રાઉન્ડ કરી શકીએ ને, તો ત્યાં ટ્રાફિક સાવ ઓછો થઈ જાય. But the problem is there, uh, when you are constructing underground, the cost will be very high for operating, for maintenance cost, right? So when you are planning something, there are only two factors, right? If you heard about this, if you are running a business or if you are planning something, હાલો right? સર, Yes. હું એમ કહું સાહેબ, તમને ઓલું WhatsApp માં ખબર હું મોકલ્યું તો ઓલું પ્લાન વાળું એક ફોટો, Yes. સર એ રીતે આપણે કરી તો? Yes, that type of practice are there, right? પણ આપણે જે છે એમાં બદલાવી ના શકીએ, બરોબર? પણ ના સર, આ તો આપણે ટ્રાફિક વિશે આપણે હોય, આપણે આવી રીતે કરીએ તો સર ટ્રાફિક કોઈ થાય જ નહીં ને પછી તો ફ્યુચર નું વિચારીને કરીને આપણે તો. હા, પણ જે હવે ડેવલપ કરવાના છે એમાં તમે કયો છો, બરાબર? હા હવે જે ડેવલપ થાય એમાં તમારે થઈ જાય, પણ એક્ઝિસ્ટિંગ સિચ્યુએશન માટે આપણે શું કરી શકીએ, બરાબર ને? This kind of practice are there, but just think about the cost of the construction, right? So budget factor is there, so that's why I'm telling that this is the right practice, no issue about that, right? So I'm sharing a screen so that everybody can understand what we are talking about. Just a minute, I'm sharing a screen so that you have an idea of what we are talking about. Okay. So this you can see that what we are talking about, right? So take a screenshot of this and we will discuss this with respect to benefit and costs, right? So take a screenshot. So we are talking about this kind of transportation system, so that at least we could remove the barriers of the traffic congestion. Right. So I'm stop sharing this screen. So I hope that you have understand this thing, right? So
what exactly we are talking about is this kind of transportation system in which you can have a rail network below the road surface, right? But every time when you are planning something, right, you need to take care about the only two factors, so which we are discussing right now. You should have a b by c ratio, right? So b means benefit, उसका फायदा क्या रहेगा, ठीक है, और कॉस्ट, जो आप प्लान कर रहे हो उसका कॉस्ट क्या रहेगा, ठीक है. सो दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, अब ये जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तभी जो है आप किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चला पाएंगे अच्छे से. समझ में आ रहा है बात? सो योर बेनिफिट फ्रॉम योर प्लानिंग शुड बी हायर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन. मान लीजिए आपका कॉस्ट जो है, ये आप जो बिल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है, जो सिस्टम हमने आपको दिखाया, उसका मान लीजिए कॉस्ट जो है वो 15 करोड़ मान लीजिए, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रेच, फॉर अ स्मॉल सेगमेंट. तो हम 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कॉस्ट नीचे है, ठीक है, कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन. तो उससे हमें इनकम कितनी होनी चाहिए, या 15 करोड़ होनी चाहिए या 15 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए? समझ में आ रही है? वहां पे आप टोल बूथ लगाएंगे और वट एवर यू कैन से द सोर्सेस ऑफ द इनकम. तो अगर आपका बेनिफिट जो है 16 करोड़ है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन रिडक्शन, राइट, सो आप जो है वो रेशियो जो है बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो इज ग्रेटर देन 1 इन दिस केस, तब जो है आप रिलायबल है, आपकी सर्विस जो है वो प्लान्ड है, राइट. So when you are planning something, you should have this factor in your mind, benefit to cost ratio. Sometimes it is called the cost to benefit ratio, but it is the same phenomenon. So cost to benefit, that means cost in the upper side of this, right? So cost should be less, this ratio should be less than equal to 1. Simple thing, right? Mathematics. So cost to benefit, the cost of the construction comes here and benefits are 16, so it is comes under this, right? So now can anybody suggest about the cost to benefit ratio or benefit to cost ratio? We will see about the b by c ratio, right? B by c ratio, benefit to cost ratio. So benefit in terms of, not only in terms of money, right, but if you can have a measurable benefit, you can say, or intangible, which can you can not measure, right? तो भी हमारा, अगर मान लीजिए आपने रोड ऐसा बनाया तो पेट्रोल बच रहा है, ठीक है, डेली कंजम्पशन जो है पेट्रोल और डीजल का वो कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, तो वो भी बेनिफिट में गिना जाएगा. सो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से द कॉस्ट रिडक्शन ऑफ एनी फैसिलिटी, राइट. तो बेनिफिट क्या हो सकता है? बेनिफिट आपका इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, राइट. इन टर्म्स ऑफ आपने डिस्टेंस कम कर दिया तो भी आपका बेनिफिट हो जाएगा. आपने टाइम रिड्यूस कर दिया तो भी जो है वो आपका बेनिफिट हो गया. आपने फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम कर दिया तो भी आपका बेनिफिट रह गया, ठीक है. उस एरिया में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, राइट. हेलो सर. हाँ સર આપણે ઓછા ટાઈમમાં વધારે માણસ લગાડીને જલ્દી કામ પતાવીને સર આપણે કરી શકીએ. हाँ, but at that time we can what we need to keep in mind is cost factor. Always તમે જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જશો, બરોબર, હાયર પ્રોજેક્ટ, આ એવું તો નથી કે હા સ્મોલ કોસ્ટના ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં થઈ જાય. ઇટ રિક્વાયર્સ હ્યુજ, તમારે લોન પણ લેવી પડે, રાઈટ. સો એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, એડીબી, એ તમને લોન આપે પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે, ધારો કે, તો એ લોન જે છે એના બધા ટર્મ્સ કન્ડિશન શું છે, એનાથી તમને બેનિફિટ થાય છે કે નહીં, that we need to keep in mind. આપણે જોશું આગળ, બરોબર. So now can anybody give the real example of basic
steps in a project planning or master plan? અથવા તમે કોઈ વસ્તુ પ્લાન કરી હોય, બરોબર, કે ભાઈ કોઈ પણ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે કે કોઈ પણ બીજી પ્લાનિંગ, તો એના માટે તમે શું સ્ટેપ્સ ધ્યાનમાં લીધા હતા? એ જ વસ્તુ જે છે આપણે પેલા એક્ઝામ્પલ સાંભળીશું એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે. સર સૌથી પહેલા સાઇટ ઇન્વેસ્ટિગેશન. ઓકે, એક્ઝામ્પલ તમે એક આપો અને પછી એને એક્સપ્લેન કરવાની ટ્રાય કરો. સર એટલે સપોઝ કે આપણે કોઈ પણ જાણે કે મને મારું ઘર બનાવવું હોય તો સર આપણે સૌથી પહેલા હું જ્યાં જગ્યામાં કોઈ પણ જગ્યા પહેલા હું ગોતવા જાઉં એના માટે. એટલે એના માટે આપણે એના ઉપર ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું. So basically you are asking the question where, right? आपको घर बनाना है तो आप क्या पहले पसंद करेंगे, क्या बनाना है? तो कि घर बनाना है हमें, ठीक है. सो दैट व्हाट, ऐसा दिन है ही नहीं जो बिना प्लानिंग का गुजरे आपका, ठीक है. आप कुछ ना कुछ प्लान तो करते ही रहते हो, राइट. सो वो जो प्लान आप करते हो वो इस 6 क्वेश्चन के आधार पे करते हो, राइट. नाउ who will construct? You are in the search of the contractor, right? What will be the time frame? कितने टाइम फ्रेम में आपको वो घर चाहिए कंप्लीट होके, ठीक है. क्यों પછી સર बनाना है? આપણે મટીરિયલ્સ ચેક કરી બધા સોઇલ ને બધું કેવું છે ત્યાં એરિયામાં. પછી ત્યાંનો એરિયા કેવી ટાઈપનો છે, ઈ રહેવા માટે બરાબર છે કે નહીં એવી રીતે. Okay. What else? Okay, so that is what we are discussing is residential planning, right? સર પછી ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ ત્યાંથી કેટલી મળે છે આપણે? યસ, જો તમે ઘર સિલેક્ટ કરો તો તમે સૌથી પહેલો ફેક્ટર શું તમે તમારા પપ્પાને પૂછી શકો છો. સૌથી પહેલો ફેક્ટર એ જોવામાં આવે કે ભાઈ અહીંયાથી મેઇન રોડ જાય છે. આ મેઇન રોડ જાય છે તો એમાં પછી આપણું બસ સ્ટેશન છે કેટલું દૂર છે, રેલવે સ્ટેશન કેટલું દૂર છે આપણા ઘરથી. સપોઝ અહીંયા તમારું ઘર છે, બરાબર, right? So let us say this is your house. So this is your railway station. This is bus station, let us say. So you are measuring the distance. તમે પહેલા છે ને આ જ વસ્તુ સિલેક્ટ કરશો ભાઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ કેવી છે, આપણે ઇઝીલી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચી શકીએ છીએ. So that is a one of your factor, right? Okay. Any other example? This is what regarding the residential building. સર આવી જ રીતે આપણે કોમર્શિયલમાં આપણે પેલા ઈ જોઈ કે આપણે આજુબાજુ એટલે આમ કે માહોલ કેવો છે. સર સપોઝ આપણે રેસિડેન્શિયલમાં આપણે કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ બનાવી નાખો તો યુઝફુલ એટલું બધું નથી, કારણ કે આમ એકદમ જ આ થઈ જાય પછી. Okay. Can અને anybody સર give the example with respect to highway engineer? बेसिक ऑफ प्लानिंग में सर हम ऐसा कर सकते हैं कि सर बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट, यानी कि वो कहाँ बनेगा, वे कहाँ बनेगा वो, और कब बनेगा. और हाँ, सर ये तो आप आपके सामने लिखा ही और है. उसका रीजन क्या है सर बनने का? नहीं, ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको दे दिए कि ये 6 क्वेश्चन आपको पूछने हैं हर बार. अब मुझे आप एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि कोई भी रोड का एग्जाम्पल लेके आप मुझे समझाइए ये सारे फैक्टर्स. ऐसा मैं कह रहा हूँ. आपको तो ये समझ में आ गया कि प्लानिंग का स्टेप क्या रहता है. अगर आपको किसी भी टॉपिक को भी समझना है तब भी यही 6 स्टेप आप पूछेंगे, ठीक है. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर लर्निंग दिस. लेकिन आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए. हेलो सर. जिसमें बेसिक्स ऑफ प्लानिंग आता हो, હેલો, इंक्लूड हो. यस. હું એમ કહું સર આપણે કોઈ પણ આપણે શું કહેવાય કોઈ પણ અંડરગ્રાઉન્ડ પુલ કે કોઈ બનાવીને તો એના માટે સર આપણે બધી પ્લાનિંગ કરવી પડે કે
રેલ આમાં ગોંડલમાં જ્યાં છે રેલવે ના શું કઈ પાટા નીચેથી અંડરગ્રાઉન્ડ પુલ બને છે ત્યાં બાજુમાં ડેમ છે હે તો ત્યાં પુલ ખોદી તો નાખ્યો પણ ત્યાં પાણી નીકળે વધારે તો એનું સોલ્યુશન હવે ગોતવાનું બધાને પછી પુલ નું પછી સર કેવી રીતે એમાં વર્ક મીન્સ કે કેવી રીતનું મટીરિયલ ને બધું યુઝ કરવાનું કે ચોમાસામાં કે એમાં વાંધો ન આવે કારણ કે ઓલરેડી ત્યાં પાણી તો ભરેલું જ રહે ચોમાસા બાજુમાં ડેમ છે એટલે સર એ બધું સોલ્યુશન બધાને ગોતવું પડે. So yes, that is come in under the historical background कि आप जहाँ पे अंडरग्राउंड या अंडरपास बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप पहले ये देखिए कि अगर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, ठीक है, हमें प्रॉब्लम कौन से फेस करने पड़ेंगे। जैसे आपने बताया कि आपको एक जो वाटर क्लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, ये आपको प्लानिंग के टाइम सोचना है, ठीक है। अगर आपने एक बार कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया उसके बाद नहीं सोचना है कि अब क्या હવે હું એમ નહીં, સમજ્યા। તમારે પ્લાનિंग करता है ત્યારે તમારે વિચારવું પડે, आपको प्लानिंग के टाइम आपको ये सब सोचना है। हमारे यहाँ क्या होता है, रिवर्स होता है। आप बिना प्लान के क्या कर देते हैं, खुदाई स्टार्ट कर दी, उसके बाद मालूम पड़ा यहाँ तो गैस पाइपलाइन थी, हमने गैस पाइपलाइन तोड़ दी, फिर गैस वाला आएगा तो गैस वाले को मालूम नहीं है कहाँ पे पाइपलाइन है, तो वही वो फिर खोदने लगेगा, तो उन्होंने पानी की पाइपलाइन तोड़ दी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्लानिंग। हमारे यहाँ डेटा जो है, ठीक है, डेटा की जो इंफॉर्मेशन जो होती है, डेटा और इंफॉर्मेशन वो मिसिंग है, क्योंकि वो गैस वाले को ये नहीं पता है मेरी कितनी पाइपलाइन कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, कितनी डीप है, कितना स्लोप हमने दिया है वो मालूम नहीं है। पानी वाले को वो मालूम नहीं है कि कितना स्लोप दिया है, कितना डायमीटर का पाइप है, ठीक है। सीवरेज वाले को वो भी मालूम नहीं है कि मेरी सीवरेज लाइन डली हुई है कि नहीं डली हुई है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्लानिंग, ठीक है। आई एम गिविंग वन एग्जांपल ऑफ इन द सूरत दैट somewhere construction work is going on and the people are started digging in that region to construct a road to provide a level surface. What they have done, they have break the electricity cable, you can say, right, below the underground electricity cable. So उसके बाद क्या है, उन्होंने फोन किया कि भाई हमारे ये इलेक्ट्रिक, तो उस लाइन की बिजली चली गई सभी ईश्वरिया की। उसके बाद वो आया तो फिर से वापस से खोदने लगा, तो पानी की पाइपलाइन तोड़ दी तो पानी चला गया ना। उसके बाद उसने गैस की पाइपलाइन तोड़ दी। सो दिस इज हैपनिंग, दिस इज रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स, ये बन रहा है, हमारे सूरत में ही बन रहा है। सो दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्लानिंग। अगर आपको मालूम होगा कि कितने डायमीटर का कौन सा पाइप नेटवर्क अंडरग्राउंड कहाँ से जा रहा है, तब आप कभी गलती करेंगे नहीं। हमारे यहाँ क्या है, रिवर्स है कि हमने रोड पहले बना दिया, उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि ओ यहाँ तो गैस की पाइपलाइन आनी चाहिए थी, वापस से खोद के वो गैस की पाइपलाइन डालने बैठता है, राइट। सो उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तभी जो है ये सारे प्लानिंग के स्टेप्स हम इंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पहले ही क्वेश्चन पूछ लो कि भैया हम यहाँ पे रोड बना रहे हैं, तो आप हमें बताइए कौन सी फैसिलिटी आप यहाँ इस एरिया में प्रोवाइड करने चाहेंगे। So first of all, sewer pipeline, water supply line, right? Electricity, you can say, gas pipeline, right? Now you can say the Wi-Fi cables also are there, running from here and there. So these are the basic facilities right now before going to construct any road. इनमें से एक भी मिसिंग है तो वापस से आपको रिकंस्ट्रक्ट, उसको रोड को तोड़ के वापस से इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द केस। आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, यही चीजें हो रही होंगी। आप देखना जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है ना, वहां आप देखना एक बार कि पहले वहां रोड तो था ही अच्छा खासा, उन्होंने वो खोद के दूसरा स्टार्ट किया और काम रुक गया, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस बेसिक फैसिलिटीज, राइट। सो देयर इज लैगिंग इन द प्लानिंग। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आ रहा है बात? यस So, सर। ठीक है, तो हमें रिवर्स करना है, प्रैक्टिस तो वही करनी है लेकिन रिवर्स, ठीक है।
तो प्लानिंग करते टाइम आपको सोच लेना, आप जब फ्यूचर में भी आपके पास कोई प्लान आता है, ठीक है, तो आप ये 6 क्वेश्चन पूछ लेना, तब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा मटेरियल चाहिए, ठीक है, कहाँ से लाएंगे। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग. So you can write down these questions, 6 questions in your class notes, right? So that every time you can ask. Then master plan, right? So master plan includes the future development of that region, right? So right now you can just go to the uh, town planning department of the Rajkot Municipal Corporation. You will get the master plan of Rajkot city of 2035. समझ में आ रहा है कि वो मास्टर प्लान क्या होता है, कि फ्यूचर डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, उसका मास्टर प्लान आपको टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, टाउन प्लानिंग में, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो है, वहां पे क्या मिलेगा आपका 2035, 2035 का राजकोट कैसा दिखेगा, उसका प्लान वहां पे ऑलरेडी रेडी है, मास्टर प्लान, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि हमें कौन से रीजन में कौन से टाइप के बिल्डिंग की परमिशन देनी है, तो वो मास्टर प्लान आप देखना, ठीक है। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा सिटी कौन सी तरफ ग्रो करेगा, क्या कौन सा फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों, आप बताइए मुझे कि जो भी यूनिवर्सिटीज है और जो बिगर हमारी एम्स जो हमने प्रोवाइड की, वो क्यों हमने आउटर स्कर्ट में रखी, समझ में आ रहा है बात। सपोज मान लीजिए ये राजकोट सिटी जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा टाइप का, तो हमने एम्स की परमिशन यहाँ पे दी आउटर स्कर्ट में। आप और भी देखिए, हमारी जो यूनिवर्सिटी है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, वो भी आउटर स्कर्ट में है, ठीक है, बाहर है, सिटी के बाहर है। क्यों, सिटी में भी ले सकते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान ऑफ द राजकोट सिटी, यू कैन नॉट सेट एन यूनिवर्सिटी इन द सेंट्रल पोर्शन। व्हाई? Because if you are establishing a university in the central region of a Rajkot city, it will lead to the chaos, right? It will lead to the extreme traffic congestion in that region. So that's why we are giving the permission to the universities, to the industrial plant, to the hospitals, outskirts of the Rajkot city. Why? Because we want to develop this region also. यहाँ पे आपने हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी, यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज दी, तो वहां पे लोग रहना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो दिस इज बेसिक्स ऑफ द मास्टर प्लान। जस्ट सी द मैप अवेलेबल इन द RMC website, Rajkot Municipal Corporation's website. In that town planning segment, you will get the master plan of the 2035 of Rajkot city, ठीक है। और आप बिहार में है तो बिहार का भी मास्टर प्लान मिल जाएगा आपको, वहां पे उस सिटी में, जिस सिटी में आप रहते हो, ठीक है, उसका भी मास्टर प्लान आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी सिटी जो है, आप ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको, कोई भी सिटी है वो हम इस टाइप का डेवलप करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले जो है, जस्ट ए मिनट, हाँ, तो मान लीजिए ये जो सिटी का सेंटर है, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है, ये सिटी का सेंटर है, और ये जो है पूरे राजकोट सिटी का मैप जो है मान लीजिए। तो अब हमारा काम ये रहता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रीजन है वो इन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो मास्टर प्लान में ये प्रोविजन होगा कि यहाँ पे आप परमिशन दीजिए कंस्ट्रक्शन की, इस एरिया में परमिशन दीजिए ताकि ये सर्कुलर शेप में आ जाए। अब आप देखिए राजकोट का जो मैप है उसमें किस टाइप के रोड होंगे, मैं आपको आइडियली बता देता हूँ कि ये मान लीजिए सेंटर है,
तो ये कुछ रोड्स है, ठीक है, जस्ट ए मिनट। मैं आपको इसमें ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ कि बेसिकली क्या है कि मान लीजिए ये जो है थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जो है आपका सिटी का सेंटर है, ठीक है, और ये जो सारी है, ठीक है, आई थिंक आई होप दिस इज विजिबल, पेन विल बी बेटर। मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो इससे भी हम समझ सकते हैं। अभी हम फर्स्ट स्टेप ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपको ये ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये जो है सिटी का सेंटर है, ठीक है, और ये जो है सिटी का एरिया है। तो अब क्या प्रॉब्लम है कि हमें जो सिटी जो है वो सर्कुलर शेप में बनाना है। जैसे कि ये आपके यहाँ से इस टाइप से रोड जा रहे हैं ना सभी के, जो एक सेंट्रल पोर्शन को कट करेंगे, राइट। तो आपका जो साउंड प्लानर जो है ठीक है, वो सिटी का वो ये डिसाइड करेगा कि किसी भी तरह के डेवलपमेंट जो है वो सर्कुलर शेप में होना चाहिए। तो पहला काम क्या करेगा, वो है ना आ, एक रिंग रोड बनाएगा, ठीक है, इस टाइप का। समझ में आई बात। उसके बाद वो जो डेवलपमेंट की परमिशन इस टाइप से देगा कि ये जो हमारा जो रीजन है वो सर्कुलर शेप में आ जाए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो सर्कल बना रहा हूँ, एनी हाउ, हाँ, इट शुड बी इन अ सर्कुलर शेप। आपको समझ में आ रहा है बात। अब जो है वो 2035 लेटर्स है, तो वो एक कोर सर्कल यहाँ पे बनाएगा इस टाइप का। क्यों? क्योंकि सर्कुलर जो होता है, ठीक है, सर्कुलर जो है वो बेस्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो किसी भी रोड नेटवर्क आप डेवलप करते हो, किसी भी सिटी का प्लान करते हो, वो हमेशा सर्कुलर मैनर में ही बनेगा। इसलिए आप ऑब्जर्व कीजिए हमारे पास एक रिंग रोड तो है ही, हम आउटर स्कर्ट पे हम दूसरा रिंग रोड बना रहे हैं राजकोट में। सो व्हाई? बिकॉज वी वांट टू प्लान अवर सिटी इन अ सर्कुलर मैनर। आप किसी भी राजकोट सिटी का मैप देखिए, सूरत का देखिए, पैटर्न विल बी सेम। तो अब क्या करेंगे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन की परमिशन यहाँ लेने जाएंगे ना, जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं ब्लैक से रोटेट करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन की परमिशन आप इस रीजन में लेना चाहेंगे ना, लेट अस से ए रीजन, तो आपको मिल जाएगी क्योंकि वो उनके अंडर में है, ठीक है। वहां पे जो है ऑलरेडी वो प्लान का हिस्सा होगा। लेकिन अब इसी टाइप की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे परमिशन लेने जाएंगे ना, तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा। आपको बात समझ में आ रही है? सो when you are planning a road network, it should be in a circular shape and roads are intersecting each and every circular ring. आपको बात समझ में आ रही है? अब आप राजकोट का मैप देखना, उसमें जो भी सर्कुलर रिंग है ना वो उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द केस। आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो किसी यस सर। हाँ, किसी भी टाइप का जो रोड यस नेटवर्क, सर। ठीक है, तो किसी भी टाइप का जो रोड नेटवर्क है वो है, हम किसी भी सिटी को सर्कुलर में बनाना चाहते हैं। जहां पे भी कम है, जहां पे भी एरिया जो है, आप अगर राजकोट का गूगल में भी डाल के देखेंगे, ठीक है, लेट अस हैव ए क्विक ओवरव्यू सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि ये राजकोट है, ठीक है, तो आप उसका मैप देखिए, जैसा मैंने बताया था वैसा ही है। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखिए
जो मैंने आपको बताया था ना, वही प्रोसीजर इस राजकोट में भी होगी. दिस इज द मैप ऑफ द राजकोट, राइट. सो व्हाट विल बी देयर, कि हम जो है इसको हम सर्कुलर शेप में लाना चाहते हैं. दैट्स व्हाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए सेकंड रिंग रोड. आपको समझ में आ रहा है? तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन सी हियर वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ रोड नेटवर्क लाइक दिस. आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अवर सेंट्रल पोर्शन, लेट अस से. सो हमने एक इस टाइप का रोड है. आप देखिए, मैं ये बनाता ही जाता हूँ. ठीक है, ये रोड है सभी, दिख रहा है आपको? इस टाइप का जो है रोड नेटवर्क आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं बनाता हूँ. Okay, Yes, so sir. this is a road network. Now we have a circular ring, you can see here. This is our circle. समझ में आ रहा है बात? This is our circle. This is our first circle. Now our aim is to develop a city in a circular manner. तो अब जो है ना, मेजोरिटी जो टाउन प्लानर है वो ये सोचेगा कि मैं इस टाइप का सर्कल बना के कंप्लीट कर दूं, और उससे ज्यादा हमारा राजकोट बढ़ेगा नहीं. So now I am trying to construct or giving the permission in such a manner that it should be in a circular shape. कि in 2045 my Rajkot looks like this. आपको समझ में आ रहा है? तो मैं जब परमिशन दूंगा ना, वो कहाँ कहाँ दूंगा, मेरे पास कौन सी वैकेंट स्पेस है, कि यहाँ पे है सर, आप यहाँ परमिशन दीजिए ताकि जो ये रीजन जो है वो फिल होके डेवलप होके सर्कुलर शेप में आ जाए. आप परमिशन देनी है तो यहाँ पे दीजिए. ठीक है, यहाँ पे जो हमें दी हुई है, मारवाड़ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, आउटर स्कर्ट पे, लेटस से यहाँ पे है कि नहीं. तो उसका एम क्या है कि मुझे ये वाला जो है ना रीजन वो डेवलप करना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप परमिशन दीजिए. सो दैट्स व्हाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ रोड इन सच अ मैनर इन अ सर्कुलर रिंग पैटर्न. इज दैट क्लियर टू यू? ये आपको समझ में आई बात? तो मैंने ये राजकोट का एग्जांपल दिया. आप किसी भी सिटी का मैप लेके आप ऐसे ड्रॉ करना, आपको सेम काइंड ही पैटर्न मिलेगा. सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स आर देयर. ठीक है, so that's why we are developing the second ring road, right? Now you will put a second ring road in between, you can say, right? According to, I'm not placing it to the mark, up to the mark, but let us say like this, right? So that should be the practical implementation of your planning, right? Am I clear? आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर. यस सर. तो हर बार जो है इस टाइप का होता है. या मान लिया बिहार का कोई एक आप मुझे बताइए, संतोष. यस सर. आप बताइए बिहार का जो कोई एक सिटी का नाम. तो वो तो सर पटना है हम लोगों का सबसे डेवलपमेंट सिटी. तो पटना का अगर आप मैप देखें तो उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको. ओके, इट्स लोकेटेड अलोंग द रिवर बैंक, यू कैन से. सो द प्लान शुड बी इन अकॉर्डिंगली इन दैट मैनर. ओके, तो उनका ये क्या रहेगा कि ये सर्कल ज्वाइंट करके कंप्लीट एक सर्कल बनाना, रिंग रोड टाइप का. ठीक है, सो इट्स डिपेंड्स ऑन द शेप्स. अगर मैं आपको एक दिल्ली का अगर आपको एक में कनॉट का लोकेशन दिखाऊं, ठीक है, तो उसमें जो है, यस, दिस इज द वे हाउ वी आर डेवलपिंग द रोड्स. ठीक है, किस तरह से इसमें सर्कुलर रिंग्स बनी हुई है, देखिए आप. समझ में आ रहा है बात? सो दिस इज एन आइडियल वन बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कि इसमें जो है सेम काइंड ऑफ पैटर्न. इट इज सेंट्रल पोर्शन, इट हैज अ रिंग, it has another ring, it has another ring, right? And the roads are passing from this in every manner, you can say, right? So our aim is to develop a city in such a manner that it should enhance the living standard of the people and it should give the comfortable living life, right? So this is how master plan work. So I'm showing you the master plan. Then engineering surveys, you are aware about it. We will discuss in detail.
and highway alignments. We will discuss also. Alignment is nothing but there is a central portion, a central line of a highway. So we are keeping this session up to this, right? So quickly write down your roll number. We will discuss highway geometry and design structure, traffic performance, materials and economics in such a manner. ठीक है, तो एक समझने में इतना टाइम लगेगा, तो आपको जो है एक्सप्लेन भी इस टाइप से करना होगा, ठीक है। मास्टर प्लान का एग्जांपल जो मैंने आपको सिखाया वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से भी आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? अब जो है ना, आप एक बार अपने सिटी जो है वो उसका मैप जो है एक बार देखना, और उसका प्लानिंग किस तरफ से ज्यादा जा रहा है वो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। सर, हेलो। यस सर, एक डाउट है हमको। वो मैं कह रहा था कि जो राजकोट का एरिया है ना, हम्म वो तो सर वो सर्कुलर में नहीं था। वो मतलब इस टाइप से था, मतलब ट्रिंगल टाइप का। मतलब आपने जो मैप दिखा रहा था ना, तो आपने वो जो सर्कुलर किया, हम्म तो सर आपने जो कहा कि साइड में हम दे सकते हैं कंस्ट्रक्शन, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि सर मतलब मान लीजिए कि वहां तक राजकोट का एरिया नहीं आएगा, तो हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? नहीं नहीं, इट शुड बी, मतलब वहाँ नहीं नहीं, मैं ये जो अब डिस्ट्रिक्ट का मुझे इंक्लूडेशन लगता है, है मैं आपका आवाज नहीं नहीं आ नहीं रहा सर, है। मुझे लगता है मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ सर। मैं ये कहना चाहता देखो, हूँ कि जो राजकोट का आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। ओके सर। आप मुझे बाद में फोन कीजिए, मेरा लेक्चर है 10 o'clock, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, थैंक ओके। ओके, कॉल कीजिएगा या फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।